للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح صدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 22 جمادی الاخری کی تاریخ یعنی پرسوں جو منگل کو جو تاریخ آ رہی ہے وہ حضرت سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ۔ اسی مناسبت سے آپ کے تعلق سے اور آپ کی عظمت اور آپ کی افضلیت کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پچھلے اجتماع میں چند باتیں جو ان کے مقام ہے، ان کا جو رتبہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہے، وہ ہم نے سماعت کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو اور آپ کی افضلیت کو بیان کیا ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب محبوب نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کے تعلق سے چند باتیں آپ نے پچھلے اجتماع میں سماعت کی تھی کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں حضرت ابو بکر صدیق کو محبوب کا صحابی کہا اور دیگر صحابہ کرام کو واضح طور پر ان کو اللہ رب العزت نے قرآن میں صحابی نہیں فرمایا، لیکن واحد ابو بکر صدیق کی ذات بابرکت ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں خود صحابی رسول فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے صحابی ہونے کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن پاک کی آیت کو انکار کیا، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اس آیت کریمہ میں صرف واحد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت کو اللہ نے صحابی کہا، تو یہی آپ کی افضلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور دیگر آیتوں میں بھی اللہ رب العزت نے سورہ نور کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، کہ جو فضل والے ہیں، فضیلت والے ہیں، وہ قسم نہ کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولو الفضل فرمایا، اور یہ اولو الفضل سے کون مراد ہیں؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بھی ابو بکر صدیق کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے آپ کو اولو الفضل یعنی فضیلت والا فرمایا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو اولو الفضل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت پاک میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ صحابہ کرام موجود تھے، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عباس حضور کے چچا تشریف لائے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کھسک کر کے آپ کو جگہ دی، تو حضور نے یہ منظر دیکھا تو حضور نے فرمایا انما یعرف الفضل لاہل الفضل اہل الفضل، کہ اہل فضیلت والوں کے مقام کو فضیلت والے ہی جانتے ہیں۔ یہاں صدیق اکبر کو بھی سرکار نے اہل الفضل فرمایا۔ اور ایک آیت کریمہ ہے سورہ حجرات میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ تمہارے نزدیک، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے۔
تو یہاں اتقا کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ سے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تم میں اللہ کے نزدیک اکرم یعنی اب سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اتقا ہو یعنی سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو یہاں مفسرین خصوصاً امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی اور دیگر مفسرین یہاں اکرم کا معنی افضل لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکرم سے مراد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، مطلب کیا کہ وہ سب سے زیادہ فضیلت والا افضل ہے۔ اب اتقا میں یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اتقا فرمایا۔ 30ویں پارے کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي یؤتی مالہ یتزکیٰ، عنقریب اس اتقا کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا تاکہ اس کو پاک کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں اتقا فرمایا، اور یہاں اتقا سے مراد کون ہے؟ تو تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ کسی دوسرے صحابی کی شان میں آیت نازل ہوئی، خصوصاً کچھ لوگ کہتے ہیں، خصوصاً یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن قرآن کی اگلی جو آیت ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ صرف ابو بکر صدیق کی شان میں ہی نازل ہوئی، کیونکہ یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، کہ اتقا وہ جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور تاکہ اس کو ستھرا کرے اور اس پر کسی کا بھی احسان نہیں ہے۔ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، اس پر کسی کا بھی احسان نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات پر حضور کا احسان ہے، حالانکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان سب پر ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے، حضور کے خود فرمان کی روشنی میں دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور خود فرماتے ہیں کہ میں نے سب کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کا، ابو بکر کا احسان قیامت کے دن میرا رب ادا فرمائے گا۔ تو یہاں قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اس پر کسی کا احسان نہیں۔ رہی بات مولائے کائنات کی، ان پر تو حضور کے احسانات ہیں کہ حضور نے ان کو جو ہے لیا اور لے کر کے ان کی تربیت فرمائی، ان کی پرورش کی، اور یہاں تک کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا، تو بے پناہ احسانات ہوئے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق پر بھی حضور کے احسانات ہیں، لیکن وہ تو ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے، جو حضور خود اپنی زبان اقدس سے فرمائے ہیں، حضور کے زبان اقدس، حضور کی حدیث پاک سے یہ بات واضح ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب کا احسان میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر کا، کہ ابو بکر کا احسان قیامت کے دن اللہ سے میں دلواؤں گا، اللہ اس احسان کا بدلہ اسے دے گا۔ تو یہ ساری آیتیں یہاں پر قرآن میں اتقا کا فرمایا صدیق اکبر کو، اور وہاں کیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک افضل وہ ہے، اکرم وہ ہے جو اتقا ہے۔ تو یہاں قرآن میں اللہ نے اتقا ابو بکر کو کہا، تو ابو بکر پتہ یہ چلا ان دونوں آیتوں کو جوڑنے سے یہ نتیجہ نکلا کہ ابو بکر صدیق اللہ کے نزدیک سارے نبیوں کے بعد افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی، میں نے ابو بکر و عمر کو آگے نہیں بڑھایا بلکہ اللہ نے ان کو آگے بڑھایا، اللہ نے ان کو آگے بڑھایا۔ اب حدیث پاک میں دیکھیں کہ حضور علیہ السلام امامت کے مصلی پر جب آپ علیل ہوئے، آپ اپنے ظاہری آخری دنوں میں، حضور جمعرات کی رات عشاء کے وقت، جمعرات کی رات میں آپ علیل ہوئے، یعنی بیمار ہوئے، ظاہری طور پہ علیل ہوئے، اور حضرت جب نماز پڑھانے کی بات آئی تو حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ کو حکم دیا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ مری ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میری جگہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے، لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے بابا جو ہے، کیونکہ آپ کے والد تھے ابو بکر صدیق، کہا کہ میرے ابا، میرے والد جو پڑھا نہیں پائیں گے، آپ کی کیفیت کو دیکھ کر کے وہ رو پڑیں گے، ان کا دل بہت نرم ہے، آپ عمر کو کہیں کہ وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ حضور نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا مری ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر دوبارہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے بابا نہیں پڑھا پائیں گے، عمر کو حکم دے کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو حضور
हुजूर ने जलाल में कहा कि मुरी अबा बकर युसल्ली बिन नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। और इस तरीके से 17 नमाजें हुजूर का विसाल हुआ था पीर के दिन, और 17 नमाजें इसमें जुमा भी शामिल है कि ईशा की जुमेरात के दिन ईशा की नमाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई 1 नमाज, जुमा की 5 नमाजें 6 हुई, और हफ्ते की 5 नमाजें 11, और इतवार की 5 नमाजें 16, और पीर की फजर की नमाज 17 नमाजें हुजूर की हयाती में, हुजूर की जो बाहयात थे उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 17 नमाजों की इमामत की है। बाकी और सहाबी रसूल को हुजूर ने आगे बढ़ने ही नहीं दिया। एक मरतबा हुआ, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है रिवायत है कि एक मरतबा हजरत हुजूर जो है किसी वक्त इन 17 नमाजों के दरमियान किसी वक्त एक सहाबी रसूल ने ये सोचा कि शायद हुजूर अभी ठीक हो गए होंगे, तो जाकर के हुजूर को कहा कि या रसूलल्लाह नमाज पढ़ा दें आकर के। तो हुजूर ने फरमाया कि जो लोगों को नमाज पढ़ा रहा है उसी को पढ़ाने का हुक्म दो। तो इत्तेफाक से हजरत अबू बकर सिद्दीक उस दिन कहीं गए हुए थे, तो सिद्दीक अकबर मौजूद नहीं थे, फारूक आज़म मौजूद थे। तो वो सहाबी आए और आने के बाद हजरत उमर फारूक को कहा कि हुजूर ने जो है नमाज पढ़ाने के लिए कहा, आप ही पढ़ा दें। तो हजरत उमर फारूक ने सोचा कि शायद हुजूर ने मेरा नाम लेकर के कहा होगा, तो हुजूर का हुक्म जो कि सबसे बड़ा है, तो आप जो है जाकर के नमाज पढ़ाना शुरू कर दिए। तो जब आप नमाज पढ़ाए तो आपकी आवाज़ ऊंची थी, हदीस पाक में जुमले आपकी आवाज़ ऊंची थी। तो हुजूर ने जब हजरत उमर की आवाज़ सुनी मुसल्ले पर, तो हुजूर पर्दा हटा करके जलाल में आकर के कहते हैं कि अबू बकर कहाँ है, अबू बकर कहाँ है, अबू बकर को हुक्म दो कि वो नमाज पढ़ाए। अल्लाह और मोमिनीन अबू बकर के सिवा किसी की इमामत को पसंद, किसी की इमामत कबूल नहीं करेंगे। तो अल्लाह हुजूर ने ये फरमा दिया। और शारहीन ने फरमाया, हदीस पाक के जो तशरीह करने वाले उन्होंने कहा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने जो नमाज पढ़ाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक के आने के बाद हुजूर ने दोबारा उस नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया, दोबारा उस नमाज को लौटाने का। अब यहाँ गौर करें, क्या फारूक आजम के पीछे नमाज नहीं होती? यकीनन होती है, बल्कि नमाज की वो मेराज है। लेकिन हुजूर ने क्यों दोबारा लौटाने का हुक्म दिया? चूंकि वो इमामत जो थी 17 नमाजों की इमामत, वो कोई मामूली इमामत नहीं थी, वो इमामत कुबरा थी, यानी अफजलियत को बताने की इमामत थी, खिलाफत बताने की इमामत थी। और हुजूर चाहते थे कि ये हक सिर्फ और सिर्फ अबू बकर का है, क्योंकि अल्लाह ने उनको आगे बढ़ाया है। तो हुजूर ने खुद फरमा दिया कि अल्लाह और मोमिनीन जो है अबू बकर के सिवा किसी को इमामत के मुसल्ले पर, हदीस पाक का मफ़हूम है कि अबू बकर के सिवा कोई भी, अल्लाह और मोमिनीन ये कबूल ही नहीं करेंगे कि अबू बकर के सिवा कोई और इमामत करे। और खुद एक मकाम पर हुजूर ने फरमाया कि किसी कौम के लिए मुनासिब नहीं है कि उसमें अबू बकर मौजूद हो और कोई दूसरा उसमें इमामत करे, ये मुनासिब ही नहीं है। तो हुजूर ने दोबारा पढ़ाने का क्यों हुक्म दिया? क्योंकि इमामत कुबरा वाली इमामत थी, अफजलियत वाली, खिलाफत वाली इमामत थी, इसलिए हुजूर ने जो है नमाज दोबारा पढ़ाने का हुक्म दिया। तो इस तरीके से हुजूर ने, और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं कि कसरत से ये तवातुर हदीस, मुतवातिर हदीस है, हदीस की कई किस्में हैं, मुतवातिर, गरीब, अजीज वगैरह बहुत सारी किस्में हैं। तो ये मुतवातिर सबसे बड़े दर्जे वाली हदीस है, इसका इनकार करना भी कुफ्र है, ये बड़े दर्जे वाली हदीस। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं मुतवातिर हदीस, यानी मुतवातिर किसे कहते हैं? कई सारे रावियों से ये रिवायत मनकूल होती है, कई सारे, और इतनी तादाद रहती है कि जहन अकल ये कह ही नहीं सकती कि ये रिवायत छोटी है, इतने सारे तादाद होती है रावियों की। तो उसके बाद आप देखें मजीद कि एक मरतबा हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक के आगे आगे चल रहे थे। तो हुजूर ने जब देखा तो अबू दर्दा से कहा कि अबू दर्दा, तुम किसके सामने चल रहे हो? हदीस पाक का मफ़हूम है, तुम किसके सामने चल रहे हो? ये वो अबू बकर है कि अंबिया के बाद अबू बकर से अफजल किसी शख्स पर सूरज अब तक तुलू नहीं हुआ, यानी अबू बकर अफजल है, उसके तुम आगे आगे चल रहे हो। तो हजरत अबू दर्दा खुद कहते हैं कि जब से हुजूर ने फरमाया, मैं उसके बाद कभी भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के आगे आगे नहीं चला। और एक रिवायत में है कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके रावी हैं कि सहाबे कराम बैठे हुए थे और बैठ करके आपस में, अंसार और मुहाजिरिन सहाबा आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे अफजलियत के ताल्लुक से कि हम में कौन अफजल है। तो हुजूर जो है आए और आवाज थोड़ी बुलंद है सहाबा की, तो हुजूर आकर के कहे कि ऐ सहाबियों, तुम किस चीज ने तुम्हारी आवाज बुलंद कर दी? तो सहाबे कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम अपने में जो है अफजलियत को बता रहे थे कि कौन अफजल है। तो हुजूर ने फरमाया कि क्या तुम में अबू बकर मौजूद है? तो सहाबा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, वो नहीं है, कहीं गए हुए हैं। तो हुजूर ने फरमाया, ला युफद्दिलुन्ना अहदम मिनकुम अला अबी बकरिन
हर ताकीद के साथ फरमाया कि हरगिज हरगिज तुम में से अबू बकर सिद्दीक पर तुमने किसी को फजीलत हरगिज मत दो। और आगे फरमाते फ़इन्नहु अफ़ज़लुकुम फ़िद दुनिया वल आखिरा, क्योंकि वो यानी अबू बकर सिद्दीक दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम में अफजल, दुनिया और आखिरत में तुम में अफजल। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं हदीस से पाक को कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत मौलाए कायनात थे, मौला अली थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए तो हुज़ूर जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मुसाफा किए, मुआनका, गले मिले और गले मिलकर के आपकी पेशानी पर बोसा दी। बोसा जब दिए तो हज़रत अली देख रहे थे, क्योंकि रश्क की निगाह से देख रहे थे हज़रत मौलाए कायनात कि हुजूर बोसा देना किसी को ये बहुत अजीम और बहुत बड़ी सआदत है। तो जब सिद्दीक अकबर चले गए तो हज़रत अली ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, आपने अबू बकर सिद्दीक को बोसा दिया? तो हुजूर ने फरमाया, सरकार फरमाते हैं कि अली मेरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मकाम हुजूर बयान करते हैं, मंजिलतु अबी बकरिन इंदी का मंजिलती इंदा रब्बी। अबू बकर सिद्दीक का मकाम मेरे नजदीक ऐसा ही है जैसा मेरा मकाम मेरे रब के नजदीक है। मेरे रब की बारगाह में मेरा क्या जो मकाम है वही मकाम मेरी बारगाह में अबू बकर सिद्दीक। इशारा देखें इसमें हदीस पाक में कि अल्लाह के नजदीक हुजूर का मकाम क्या, सारे मखलूकात में अफजल। और हुजूर फरमाते हैं कि मेरा मकाम जो रब के नजदीक है वही मकाम मेरे नजदीक मेरे अबू बकर का है। यानी हुजूर के नजदीक अबू बकर का ये मकाम है कि हुजूर तमाम नबियों के बाद अबू बकर सिद्दीक सारी मखलूक में अफजल है, तमाम नबियों के बाद। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने इतनी मोहब्बत करते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से, इतनी मोहब्बत कि खुद जब हजरत मौलाए कायनात की खिलाफत का जमाना था तो कुछ लोग उस वक्त कूफा में आप जामे मस्जिद के मिंबर पर खुतबा देते थे, तो कुछ लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक पर हजरत अली को फजीलत दी। उन्होंने कहा कि नहीं, हजरत अली अफजल है। तो हजरत मौलाए कायनात को जब ये खबर पहुंची तो आप कूफा के मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दिए, अल्लाह की हमदो सना बयान की और कहते हैं कि मफहूम हदीस पाक का वो कहते हैं कि मुझे खबर पहुंची है कि तुम लोग मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देते हो, यानी मैं अफजल हूँ अबू बकर उमर से, तुम लोग ये कहते हो। और फिर आगे फरमाते हैं कि अगर किसी ने मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत दी, यानी मुझे अगर अफजल कहा, तो मैं तुम्हें मुफ्तरी की सजा यानी झूठ बांधने वाले की सजा दूंगा। और मुफ्तरी की सजा क्या है? 80 कोड़े, यानी 80 कोड़े की सजा मैं तुम्हें नाफिज करूंगा। और फिर फरमाया कि सुन लो, तमाम नबियों के बाद सबसे अफजल अगर कोई हस्तियां हैं तो हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर फारूक हैं। खुद मौलाए कायनात ने और कसरत के साथ मौला अली ने मिंबर पर खड़े होकर के कसरत के साथ इसको बयान किया है, कसरत के साथ। इमाम ज़हबी खुद लिखते हैं कि कसरत के साथ मौला अली जो है इस अकीदे को बड़ी सख्ती के साथ आप बयान करते थे। वजह क्या थी? इसलिए कि ये वो अकीदा है जो अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा, जो इस अकीदे से फिर गया, यानी अबू बकर उमर पर किसी और को अगर फजीलत दिया तो वो अहले सुन्नत से खारिज है, वो गुमराह है, वो बददीन है। सारे बड़े बड़े उलमा ने, मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह, इमाम गज़ाली, सब ने लिखा है कि जो अबू बकर उमर पर किसी को फजीलत दे तो वो गुमराह है, बददीन है, वो अहले सुन्नत से खारिज है। इसलिए मौलाए कायनात इतनी सख्ती से ऐलान फरमाते थे। बल्कि एक मकाम पर तो आपने फरमाया कि अगर कोई मुझे फजीलत दे अबू बकर उमर पर तो मैं इसे जानी को जो सजा देता हूँ वो सजा उस पर मैं नाफिज करूंगा। और एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक शख्स आया और आने के बाद हजरत अली से कहा कि अली आप तो सब में अफजल हैं, आप तो सब में अफजल। तो जैसे उस शख्स के ये सुना हजरत अली ने तो फरमाया कि तुम ये बताओ क्या तुमने रसूलुल्लाह को देखा है? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने रसूलुल्लाह को नहीं देखा। तो हजरत अली ने फरमाया कि ये बताओ क्या तुमने हजरत अबू बकर उमर को देखा है? कहा नहीं देखा। तो हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अगर तुम कहते कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा है तो अभी मैं तुमको कत्ल कर देता, क्योंकि तुम नबी से मेरे नबी से अफजल कोई नहीं हो सकता और तुम मुझे अफजल करा दो रसूलुल्लाह को देखने के बाद। अगर तुम कहते कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा तो तुम्हें कत्ल कर देता, और अगर तुम कहते कि मैंने अबू बकर उमर को देखा है तो तब भी मैं तुम पर हद जारी करता, यानी 80 कोड़ों की सजा तुम पर नाफिज करता। और आगे कहते हैं, सुनो, नबियों के बाद, रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल अगर कोई हस्तियां हैं तो अबू बकर हैं और हजरत उमर है। खुद मौला अली ने कसरत के साथ इसको बयान किया। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अगर कोई हजरत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की शान में गालियां दे, हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा को गालियां दे,
तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि उस पर अल्लाह की लानत है, तमाम फरिश्तों की लानत है, तमाम लोगों की उस पर लानत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद कहते हैं। और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद का इस बात पर इत्तेफाक है, यानी बनु फातिमा अहले बैत अतहार का इस बात पर इत्तेफाक है कि तमाम नबियों के हजरत अबू बकर उमर के ताल्लुक से अच्छी बात कहे, जबान से उनके ताल्लुक से अच्छी बात कहे, उनकी शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी ना करे। ये अहले बैत अतहार के नजदीक उनका मकाम है। और खुद गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुनियतुत तालिबीन के अंदर ये अकीदा बयान किया कि सारे नबियों के बाद सबसे अफजल कोई है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर हजरत उमर फारूक, फिर हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत मौला अली। ये चार वो सहाबा हैं कि जिनका मकाम बहुत बड़ा है, चार खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर सिद्दीक का, हजरत उमर फारूक का, हजरत उस्मान गनी का, हजरत मौला अली। इनके मकाम तक कोई सहाबी पहुंच ही नहीं सकते। और इन चार सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो मकाम है, इनके मकाम तक कोई और पहुंच ही नहीं सकते। ये बहुत बड़े मकाम के सहाबा कराम हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी, उमर फारूक, उस्मान गनी और मौला अली बहुत अजीम हैं और इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे हुजूर अलैहिस्सलाम। हुजूर के चार यार हैं, चार खुलफा हैं। तो इसलिए आज के इस दौर में हमें सबसे पहले चाहिए कि अपने अकीदे की हिफाजत करें। आज तरह तरह के लोग जो है अकीदों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत अली की मोहब्बत में, हजरत मौला अली की मोहब्बत में कोई हजरत अली को हजरत अबू बकर से अफजल कहता है, कोई सहाबा कराम को गालियां देता है। ऐसों को मोबाइल में सुनना भी नहीं और ऐसों की महफिलों में जाना भी नहीं और ऐसों से दोस्ती भी नहीं करनी, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा सिर्फ और सिर्फ ये है कि तमाम नबियों के बाद अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर फारूक, फिर उनके बाद हजरत उमर फारूक, फिर उनके बाद हजरत उस्मान गनी, फिर उनके बाद हजरत मौला अली। यही हजरत अली का भी मसलक है कि आपके बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मौला अली की एक दूसरी बीवी के बेटे हैं। वो अपने बुखारी में रिवायत है, बुखारी शरीफ में, कि मोहम्मद इब्न हनफिया रज़ी अल्लाह अन्हु मौला अली की बारगाह में आए और कहा कि अब्बा हुजूर, तमाम नबियों के बाद अफजल कौन है? तो मौला कायनात ने फरमाया अबू बकर। और फिर फरमाया मोहम्मद इब्न हनफिया ने कि उनके बाद कौन अफजल है? कहा उमर फारूक। और फिर उसके बाद हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया ने मौला अली के बारे में पूछा, फिर आपका मकाम क्या है? यानी उनको डर लगने लगा, आगे उन्होंने सवाल नहीं किया। उनको ये लगा, मोहम्मद इब्न हनफिया खुद कहते हैं कि मैंने आगे कुछ सवाल नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हजरत उस्मान का नाम ले लें। तो मैंने खुद डायरेक्ट अपने बाबा से पूछा कि आपका मकाम फिर कहाँ है? तो मौला अली आजिजी के तौर पर कहते हैं, मैं तो आम लोगों में से हूँ। ये आजिजी के तौर पर कहा, हालांकि बहुत बड़ा मकाम है मौला अली का। चौथे नंबर पर आप अफजल हैं और चौथे खलीफा हैं, बहुत बड़ी शान है मौला कायनात की, लेकिन आजिजी देखे कहते हैं मैं आम लोगों में से। तो ये कैफियत थी मौला कायनात की। और खुद मौला अली रज़ी अल्लाह तआला हुजूर से सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विसाल के वक्त मौला अली खुद हजरत सिद्दीक अकबर के पास थे और सिद्दीक अकबर को उन्होंने ही गुस्ल दिया, कफन पहनाया और फिर उसके बाद जो है हुजूर की बारगाह में लेकर के गए, इजाजत ली हुजूर से, क्योंकि सिद्दीक अकबर ने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे जो है मेरे जनाजे को तैयार करके हुजूर के रोज़े पाक पर ले जाओ और बाहर जो है रख करके हुजूर से इजाजत लो कि आपका यार जो है आपके साथ हर जगह साथ में रहता था, मजार में भी साथ में रहना चाहता है। तो वसीयत के मुताबिक बास किताबों में है कि हजरत मौला अली खुद उनके जनाजे को लेकर के हुजूर के रोज़ा पाक, हुजूर का जो कब्र अनवर है, वहाँ बाहर हुजरे के बाहर खड़े होकर के कहा, या रसूल अल्लाह, पूरी जिंदगी अबू बकर आपके साथ रहते थे, इनकी तमन्ना है कि ये मजार में भी आपके साथ रहना चाहते हैं। तो रिवायत में आया है कि मजार अनवर से आवाज आई कि हबीब को हबीब से मिला दो। मजार अनवर से आवाज आई। तो यहाँ से ये भी पता चला कि सहाबा का यह अकीदा है। हुजूर, हालांकि 2.5 साल हो गए थे हुजूर का विसाल होकर के, लेकिन जाकर के मौला अली खुद ये कह रहे हैं हुजूर की रोज़े अनवर के पास मुखातिब होकर, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक खुद कहने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब क्या कि सहाबा का अकीदा है कि हुजूर अपनी कब्र में जिंदा है, हुजूर अपने कब्र में जिंदा है। और जब इजाजत मिली तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को वहां पर कब्र अनवर में रखा गया, और जब मौला अली खुद उतर करके जब आपको सिद्दीक अकबर को जब रख रहे थे कब्र अनवर में, तो आवाज आई, तो मौला कायनात ने तकबीर कहना शुरू की। तो सहाबा ने पूछा कि आप तकबीर क्यों कह रहे हैं? कहा कि मैं देख रहा हूँ कि जब मैं अबू बकर सिद्दीक को कब्र अनवर में उतार रहा तो खुद मेरे आका भी तशरीफ लाए, खुद मेरे रसूल भी तशरीफ लाए, और तशरीफ ला करके हुजूर दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह,
मेरे अबू बकर सिद्दीक के सदक़े मेरी उम्मत के उमर रसीदा, मेरी उम्मत के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जो बूढ़े लोग हैं, मौला तो उनकी बख्शिश फरमा दे। अबू बकर सिद्दीक के सदक़े मेरी उम्मत के जो बूढ़े लोग हैं उनकी बख्शिश फरमा दी। ये हुजूर दुआ की है। तो ये बहुत बड़ी सआदत है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक अकबर अपनी कब्र अनवर में हुजूर के पहलू में आराम फरमाए, गोया हुजूर के सीने से लगे हुए हैं सिद्दीक अकबर आज भी। और फारूक आजम जो है उनका भी मज़ार वहीं पर है जहाँ हुजूर का मज़ार अनवर है। ये बहुत बड़ी सआदत है। दिन रात रहमतें बरस रही हैं उनकी कब्र अनवर पर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अहले सुन्नत से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। या अल्लाह अज़्ज़ वजल मौला, जो कुछ भी बयान हुआ, जो कुछ भी कहा सुना गया, कहने सुनने में जो भी गलतियां हुई, जो भी कोताहियां हुई, अल्लाह तमाम गलतियों को, कोताहियों को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ वजल मौला, या अल्लाह हम सबको अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हज़रत व सख्ती से कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमा। जितने भी यहाँ पर हाजिर हैं, हम सबको, हमारे घर वालों को और तमाम ईमान वालों को इस पुरफतन दौर में मौला, या अल्लाह हमारे दिलों में जो अकायद अहले सुन्नत है मौला, उनको तो महफूज व मामून फरमा। या अल्लाह सहाबे कराम, अहले बैत अत्हार, पंजतन पाक, चारों खुलफाए राशिदीन और या अल्लाह औलिया कराम, शोहदाए कराम, अज़वाज मुतहरात और खुसूसन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अकीदत मोहब्बत हम सब के दिलों में पैदा फरमा। गुमराहियत से, फितनों से मौला हम सब की और तमाम हमारे घर वालों की, तमाम ईमान वालों की हिफाजत फरमा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े और हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के सदक़े या अल्लाह हम सब के तमाम नेक दुआओं को, नेक जायज़ मकासिद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ वजल रहम फरमा, फज़ल फरमा, जिन्होंने जो भी दुआओं की दरख्वास्त की, सबके नेक दुआओं को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जनाब अनवर साहब जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला है, उनको तो शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। या अल्लाह सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु और सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा के सदक़े में या अल्लाह जनाब अनवर साहब को या अल्लाह तो शिफाए ताम्मा, शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। और जो भी मोहलिक बीमारियों में मुब्तला है, सबको शिफा नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारिक व सल्लिम स्वलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मलाइका या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आप काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम का हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मुझे फिर दर पे बुलाना, मदनी मदीने वाले, माही इश्क भी पिलाना, मदनी मदीने वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मेरे आका कमली वाले, मेरे दिल में रहने वाले, अब दिल से ना जाना, ए मदीने रहने वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका,
صلوات اللہ علیکہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق کی میں مچھلیں انہیں دیکھ تم بنانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو کا صدقہ دو نبیہ کا صدقہ دو صدقہ دو اولیاء کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرشیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے ایک کبھی بدل وجلد آنا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي رسول الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين